The function x of t is shown in the figure. Even and odd parts of a unit step function u of t are respectively option A 1 by 2 comma 1 by 2 x of t, option B minus 1 by 2 comma 1 by 2 x of t, option C 1 by 2 comma minus 1 by 2 x of t, option D minus 1 by 2 comma minus 1 by 2 x of t. Hi friends, this is a question from GATE exam EC 2005. सिग्नल्स एंड सिस्टम्स सब्जेक्ट का ये क्वेश्चन है. टॉपिक है बेसिक्स ऑफ सिग्नल्स, जिसमें कि ये क्वेश्चन इवन एंड ऑड पार्ट्स पे बेस्ड है. गिवन क्वेश्चन में आपको एक सिग्नल एक्स ऑफ टी प्लॉट दिया हुआ है और आपको जो फाइंड करना है इवन एंड ऑड पार्ट्स ऑफ यू ऑफ टी. एक जो बेसिक मिस्टेक यहाँ पे पॉसिबल है कि क्वेश्चन में क्या होता है कि हमें ये सिग्नल एक्स ऑफ टी दिख रहा है, हमें ये हमेशा कंफ्यूजन होता है कि क्वेश्चन में बोल रहा है इवन एंड ऑड एक्स ऑफ टी का निकालना है. बट दिस इज नॉट द केस. यहाँ पे क्लियरली स्पेसिफाइड किया हुआ है आपके स्टेटमेंट में इवन एंड ऑड पार्ट्स ऑफ यूनिट स्टेप सिग्नल यू ऑफ टी. दैट मीन्स यू ऑफ टी का आपको इवन और ऑड पार्ट्स कैलकुलेट करना है. तो इसके लिए बेसिक फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं. वी शुड नो इवन पार्ट of any signal x e of t is given as x of t plus x of minus t whole divided by 2. So in this way unit step का जो even part है that may be written as u of t plus u of minus t होल डिवाइडेड बाई 2. वेवफॉर्म्स के फॉर्म में देख लेते हैं. सो इफ आई वांट टू प्लॉट u ऑफ t, दिस विल बी माय सिग्नल u ऑफ t. पॉजिटिव टाइम पे इसकी मैग्नीट्यूड +1 होगा और नेगेटिव टाइम पे मैग्नीट्यूड विल बी 0. इन द सेम वे लेट मी प्लॉट u ऑफ माइनस t. So now if I want to plot u of minus t, u of minus t will be the time reversed signal of u of t. That means left hand side and right hand side will be flipped. Both the axes will be flipped. So this positive +1 magnitude will come on the left hand side and this 0 magnitude will shift into the right hand side. सो दिस इज द टाइम रिवर्स्ड सिग्नल. ये जो राइट हैंड वाला साइड था ये आपके लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो गया एंड सिमिलरली जो लेफ्ट पार्ट वाला सिग्नल था वो आपका राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो गया. इन दोनों सिग्नल को ऐड करना है और फिर डिवाइड बाई 2 करना है. सो इफ यू विल ट्राई टू ऐड बोथ दीज सिग्नल्स, if you will try to add both these signals, that is u of t plus u of minus t. So positive time पे magnitude is 1 and this is 0. 1 plus 0 will be 1. Left hand side में this magnitude is 0 but this magnitude is 1. So again this will be 0 plus 1. So ये magnitude यहाँ पे 1 था. So दोनों signal को अगर add करेंगे simply you will get a DC signal whose value is always 1. As per the formula of the even part of this signal, you have to divide the whole signal by 2. So in the final step, we can draw u of t plus u of minus t whole divided by 2, which will give me even part of this signal. And this will be a DC signal with the magnitude 1 by 2. So this is the 50% solution of the question. In the next part, जैसे हमने even part calculate किया है, similarly we have to calculate the odd part as well. So the formula for odd part of any signal is given by xo of t is equal to x of t minus x of minus t
होल डिवाइडेड बाई 2। सो जैसे हमने यहाँ पे u ऑफ t और u ऑफ माइनस टी को ऐड किया था, दिस टाइम आई हैव टू सब्ट्रैक्ट u ऑफ t विथ u ऑफ माइनस टी। दैट मीन्स यूनिट स्टेप का जो ऑड पार्ट है दैट विल बी इक्वल टू u ऑफ t माइनस u ऑफ माइनस टी होल डिवाइडेड बाई 2। सो जैसे हमने एडिशन किया था वैसे ही अब हम सब्सट्रैक्शन पे जाएंगे। सो नेक्स्ट आई वांट टू प्लॉट u of t minus u of minus t. So this signal subtracted with this signal. So see the right hand side, magnitude is 1, this magnitude is 0, so 1 minus 0 will be 1. So right hand side, this is plus 1. Now check on the left hand side, 0, and this magnitude is 1, so when you will subtract 0 minus 1, your result will be minus 1. So on the left hand side, I will get a signal with a magnitude of minus 1. So this is the signal u of t minus u of minus t. Now as per the formula, I have to divide the whole signal divided by 2. So u of t minus u of minus t whole divided by 2. So this plus 1 will be divided by 2 as well as this minus 1 will be divided by 2. So your signal will be plus 1 by 2 on the positive side of the time axis and minus 1 by 2 on the negative side of the time axis. लेकिन जो options हैं वो आपको x of t के terms में दिखा हुआ है। So now let us see what is the signal x of t. So ये जो signal x of t है और जो आपका odd part of unit step signal निकला है ये एकदम similar है, सिर्फ चेंज आपके मैग्नीट्यूड में है कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड +1 और ये -1 है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे so this magnitude is 1/2 and this is -1/2. So now I can say कि जो odd part of unit step signal है that is 1/2 times x of t. So this completes your answer. So even part of unit step signal is a DC signal whose value is 1/2. So even part of unit step signal is equal to 1/2. This is your answer. And odd part of unit step signal is 1/2 times x of t. This is your answer. इन दोनों को combine करेंगे. So option A is the correct answer. So option A is correct. The waveform of a periodic signal x of t is shown in the figure. A signal g of t is defined by g of t is equal to x of t minus 1 divided by 2. The average power of g of t is fill in the blanks. गेट एग्ज़ाम EC 2015 में सिग्नल्स एंड सिस्टम्स में टॉपिक बेसिक्स ऑफ सिग्नल्स का ये क्वेश्चन है। एवरेज पावर पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। एक सिग्नल x ऑफ t दिया हुआ है लेकिन आपको x ऑफ t का एवरेज पावर नहीं निकालना है, आपको एक g ऑफ t सिग्नल का एवरेज पावर निकालना है। एंड वेयर g ऑफ t इज डिफाइंड एज x ऑफ t माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 2। सो x ऑफ t जो सिग्नल है उसमें यहाँ पे शिफ्टिंग भी की गई है और स्केलिंग भी की गई है। एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट अगर आपको यहाँ पे पता होगा तो आपको बहुत ही टाइम सेव हो जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, कि टाइम शिफ्टिंग करने से या टाइम स्केलिंग करने से आपका एवरेज पावर चेंज नहीं होगा। इट मीन्स अगर आप डायरेक्टली x ऑफ t का एवरेज पावर निकालते हैं वही एवरेज पावर होगा x ऑफ t माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 2। सो व्हाट आई एम सेइंग हियर, एवरेज पावर is not affected by time scaling and shifting.
is not affected by time inversion. Average power is only affected by amplitude scaling. सो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, एम्पलीट्यूड स्केलिंग से ही आपका एवरेज पावर चेंज होगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एम्पलीट्यूड स्केल्ड नहीं है. सो इट मीन्स पावर ऑफ दिस सिग्नल g of t that is equal to power of this signal x of t minus 1 whole divided by 2, that will be equal to power of the signal x of t. That means जो टाइम आपको लगता x of t को x of t minus 1 डिवाइडेड बाई 2 में कन्वर्ट करने में, वो टाइम आपका सेव हो जाएगा अगर आपको ये स्टेटमेंट्स मालूम है तो. नाउ इट मीन्स डायरेक्टली जो सिग्नल गिवन है x of t, इसका मैं डायरेक्टली एवरेज पावर कैलकुलेट कर सकता हूँ. सो आई एम कैलकुलेटिंग एवरेज पावर फॉर x of t. So power for signal x of t, this is equal to 1 upon t minus t by 2 mod of x of t whole square dt. क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर आ जाता है, तो अगर आप ये चेक करेंगे कि एम्पलीट्यूड इन्वर्जन से भी एवरेज पावर इफेक्ट नहीं होता है. एम्पलीट्यूड इन्वर्जन से भी एवरेज पावर इफेक्ट नहीं होता है. दैट मीन्स एवरेज पावर आपका सिर्फ एम्पलीट्यूड स्केलिंग से ही इफेक्ट होगा. ओके, सो लेट अस कंटिन्यू. अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ ये है कि टाइम साइकिल अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं. अगर आप -1 से स्टार्ट कर रहे हो तो आप 2 तक जाएंगे. अगर आप -2 से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप 1 तक जाएंगे. व्हाट आई एम सेइंग, अगर आप -1 से स्टार्ट करते हो, यू कैन गो अप टू 2 फॉर 1 कंप्लीट साइकिल. ऑल्सो यू मे स्टार्ट फ्रॉम -2, देन यू हैव टू गो ओनली अप टू 1. अगर आप -2 से +2 तक अगर एक कंप्लीट साइकिल ले लेंगे तो अगेन आपको यहाँ पे आंसर गलत मिलेगा. सो इन दोनों में से एक ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं. या तो आप -1 से स्टार्ट करके +2 तक जाएंगे, या आप -2 से स्टार्ट करके +1 तक जाएंगे. सो लेट मी गेस द फर्स्ट केस, जहाँ पे -1 से स्टार्ट करके मैं 2 तक जाऊंगा, और इसकी जो ड्यूरेशन है साइकिल की वो है 3 सेकेंड्स. सो नाउ लेट अस अप्लाई इन द फॉर्मूला. So this will become 1/3, duration is -1 to +2 mod x of t whole square dt. अगर आप यहाँ सिग्नल को चेक करेंगे, -1 से +1 के बीच में एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहा है. ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास हो रही है. सो द इक्वेशन विल बी ऑफ द फॉर्मेट y इज इक्वल टू mx, जहां पे इसका स्लोप अगर आप चेक करेंगे, स्लोप होगा -3. सो इसका जो स्लोप होगा दैट विल बी -3. सो dy अपॉन dx आप चेक कर सकते हैं. चेंज इन y जो है -3 से लेके 3 तक, दैट मीन्स 6, और dx x में जो चेंज है वो t इज इक्वल टू 2 का है, -1 से 2. सो नेगेटिव डायरेक्शन में है, इसलिए -3 आपको मिलेगा. dy इज इक्वल टू 6, dx इज इक्वल टू 2, 6/2 इज इक्वल टू 3, और ये नेगेटिव डायरेक्शन में डिक्रीजिंग स्लोप है. सो स्लोप इज इक्वल टू -3. सो -1 से +1 के बीच में स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहा है जो कि ओरिजिन से पास कर रही है, और इसका स्लोप -3 है. 1 से लेके 2 में इसका मैग्नीट्यूड 0. सो लेट मी पुट इट हियर. दिस विल बिकम 1/3. जैसे हमने डिस्कस किया था, -1 से +1 के बीच में एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहा है जिसका स्लोप -3 है. सो टाइम डोमेन का सिग्नल है. सो आई कैन राइट -3t होल स्क्वायर dt.
and from duration t is equal to 1 to t is equal to 2, magnitude is equal to 0, so this will become 0 square dt. So then you can continue with the calculations. This is 1 by 3, 3 square will be 9, and t square का जो integration होगा that will be t cube by 3, so this will become 9 t cube divided by 3. Integration limits is -1 to +1. So you can check 3 into 3, 9 will cancel out. So t cube 1 and -1, so the answer will be 2 watts. So the power we have calculated is equal to 2 watts. So answer of this question is 2 watts. Given the plot of f of x versus x as shown below. Suppose capital F of x is equal to integration -5 to x small f of y dy. Which one of the following is a graph of capital F of x? So friends, this is a question from GATE exam EC 2016. सिग्नल एंड सिस्टम सब्जेक्ट में बेसिक्स ऑफ सिग्नल्स पे बेस्ड ये क्वेश्चन है. क्वेश्चन में आपसे एक स्मॉल एफ फंक्शन दिया हुआ है और आपको बोला हुआ है कि जो कैपिटल एफ वाला फंक्शन है वो स्मॉल एफ फंक्शन का इंटीग्रेशन है और आपको कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसमें से आपको फाइंड करना है कैपिटल एफ फंक्शन कौन सा है. दैट मीन्स इसका इंटीग्रेटेड फंक्शन जो होगा वो आपको फाइंड करना है. सो एक बेसिक चीज जो यहां से आपको क्वेश्चन में गिवन है, सो कैपिटल एफ इज इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ, और आई कैन से कि स्मॉल एफ को मैं अगर इंटीग्रेट करूंगा देन आई विल गेट द फंक्शन कैपिटल एफ, और आई कैन से कि कैपिटल एफ फंक्शन को अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा देन आई विल गेट द फंक्शन स्मॉल एफ. सो अगर ऑप्शंस में से सर्च करेंगे तो बेसिकली अगर मैं चारों ऑप्शंस को यहाँ पे जैसे मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ऑप्शंस को अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा देन कैपिटल एफ को डिफरेंशिएट करने से आई शुड गेट अ फंक्शन स्मॉल एफ. तो अगर मैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने की कोशिश करूंगा तो मैं यहाँ पे एग्जैक्टली साइज एंड शेप पे नहीं जा रहा हूं, बट एक किस तरह का मुझे ग्राफ मिलेगा अगर आप उसको चेक करेंगे तो ये पार्ट अगर आप चेक करेंगे टिल दिस पर्टिकुलर पार्ट, दिस पार्ट आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस स्लोप इज नेगेटिव. ये आप चेक करेंगे यहां पे स्लोप आपका नेगेटिव है, और इस पॉइंट के बाद अगर आप चेक करेंगे ये स्लोप पॉजिटिव. अगेन आफ्टर दिस टाइम दिस स्लोप इज नेगेटिव. तो अगर इसका एक डिफरेंशिएटेड फंक्शन हम ड्रॉ करने की कोशिश करें, इन दिस पार्ट आई विल गेट अ फंक्शन विथ अ नेगेटिव मैग्नीट्यूड, और जहां पे स्लोप पॉजिटिव है आई विल गेट अ फंक्शन विथ सम पॉजिटिव मैग्नीट्यूड. अगेन जहां पे स्लोप नेगेटिव है आई विल गेट अ फंक्शन विथ अ नेगेटिव स्लोप. आई एम नॉट गोइंग विद द एग्जैक्ट साइज एंड शेप, बट नेचर अगर आप चेक करेंगे तो ये जो गिवन फंक्शन है उससे ये नेचर मैच नहीं कर रहा है. दैट मीन्स ये जो एफ ऑफ एक्स रिक्वायर्ड है दैट इज इनकरेक्ट. लेट मी मूव टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वाला भी जो है एग्जैक्टली सिमिलर है, जो कि ऑप्शन ए के जैसा है. तो ये आपका नेगेटिव स्लोप हुआ, दिस इज पॉजिटिव स्लोप, अगेन दिस इज नेगेटिव स्लोप. अगर आप इसके डिफरेंशिएशन में जाएंगे अगेन इन दिस पार्ट यू विल गेट सिग्नल विथ अ नेगेटिव मैग्नीट्यूड. This part you will get a signal with a positive magnitude. Again in this part you will get a signal with negative magnitude. So this is also not the correct option
for small f of x. Now let us see option C. Option C में अगर आप चेक करेंगे, so this part is having a negative slope and this part is having positive slope. तो अगर आप एक डिफरेंशिएटेड वेवफॉर्म यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, सो ये क्योंकि नेगेटिव मैग्नीट्यूड है, यू विल गेट अ वेवफॉर्म समथिंग लाइक दिस, और यहाँ पे पॉजिटिव स्लोप है तो आपको जो मैग्नीट्यूड मिलेगा दैट विल बी पॉजिटिव. यू कैन सी दिस फंक्शन is very similar to the function given in this question. You can see left hand part is completely negative magnitude. Again I am saying whatever may be the shape and size, that will not affect. Just see the magnitude is negative on the left hand side and it is positive on the right hand side, जो कि यहाँ पे ऑप्शन C को डिफरेंशिएट करने से मिल रहा है. सो क्योंकि गिवन फंक्शन जो कैपिटल f ऑफ x है इसका स्लोप नेगेटिव है, इसलिए इसके डिफरेंशिएटेड वर्जन का मैग्नीट्यूड नेगेटिव होगा, जैसे कि क्वेश्चन f ऑफ x में गिवन था. एंड कैपिटल f ऑफ x में राइट हैंड साइड में पॉजिटिव स्लोप है, तो डिफरेंशिएटेड सिग्नल जो होगा उसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होगा. दैट मीन्स ऑप्शन C जो है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. सो ऑप्शन C इज करेक्ट. एंड यू कैन सी लेटर ऑन कि अगर आप ऑप्शन डी को भी डिफरेंशिएट करेंगे आपको इस तरह का वेवफॉर्म नहीं मिलेगा. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके फ्रेंड्स, थैंक यू.